A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, class 11, that is microeconomics and the statistics for the economics. Okay. So from the previous few classes, we will continuously revise the chapters as well as we have done the numbers of the numerical questions which is related to the statistics for economics, as well as we have studied the different chapters of your microeconomics again and again, like price determination, main market forms, as well as the simple applications of the tools of the demand and supply. After that, we have started do the numerical questions of the chapters of the statistics, like measures of the central tendency. We have done the numbers of the questions which is related to the mean, median, modes, quartile, decile and the percentile, as well as we have started the chapter that is measures of the dispersion. So in this we have studied only the standard deviation as well as the coefficient of variation and the Lorentz curve, because we know very well that due to COVID your syllabus has been reduced, so you no need to study the range, quartile deviation and the mean deviation. Next topic that we have started, next chapter, that is correlation. Okay, so in the chapter correlation we have studied what is the meaning of the correlation, types of the correlation, and the methods of the measuring the and the calculating the correlation. So in which we have discussed the scatter diagram method and the Karl Pearson's coefficient of correlation. So rank correlation has been deleted from your syllabus. So in the basically the Karl Pearson, we have studied the direct method, shortcut method, step deviation and the assume mean method, and what are the different limitations of the correlation. So we have completed that chapter again. Next that we have started, that is index number. So what is index number we have already discussed, and what are the features and the characteristics of the index number we have completed, advantages of the index number, what are the different problems or the difficulties which are facing while the construction of the index number. So these all are the purpose of the construction of the index number. So what are the different purpose of the index number, and the selection of the base year. So base year will always taken as the 100, and the base year should free from all the natural calamities, okay, like flood, drought, etc. So there will be no any kind of price fluctuation that demand increases or the supply increases. So the base year should be free from all these contingency. Next problems or the difficulties, that is selection of the number of items, selection of the sources of the data, price quotation, selection of an average, selection of the system of weighing, selection of an appropriate formula. So we have discussed all these things. Next that we have started, that is limitations of the index number. So the limitation of the index number are the limited coverage, qualitative changes are ignores the changes to the consumption pattern, different limited applicability, misleading results, and the based on the average we have discussed. Next that we have started topic is methods of the construction of the index number. So method of the construction of index number is divided into two, that is unweighted unweighted or the simple index number or the weighted index number. So unweighted index number is divided into two, simple aggregative method and the price relative of the simple average of the price relative method. So in the previous classes we have already done all the numerical questions which is related to the unweighted index number. So in the unweighted index number, so all the items have the equal importance. Okay, so in the unweighted index number, and when we discuss about the simple aggregative method, so the formula is P01 equal to summation P1 upon summation P0 into 100. So we have done I think 2 or 3 numerical questions related to the simple aggregative method. Next we have started, that is simple average of the price relative method. So which is equal to the P01 equal to summation PR upon N. So PR is the price relative. So how we calculate is PR, that is P1 upon P0 into 100, and after that we will
sum all the P1 upon P0 into 100, so that, and it will divided by n, that is number of observation. So we have also done the number of the numerical question related to the simple average of the price relative method. Next topic that we are going to start in the today's class, that is weighted index number. So first of all, we study what is the weighted index number and different methods to calculating the index number in the weighted method. Okay, so let's get started. So in the weighted index number, first of all, we should know what is the meaning of the weighted index number. Okay. So in the construction of the weighted index number, all the item of the series are assigned rational weight in an explicit manner. ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर में जो भी आइटम है सीरीज के उनको रैशनल एक वेट दिया जाता है. सो वेट आर असाइन टू द वेरियस आइटम टू रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द सीरीज. कि उनको जो भी वेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या है कि उनकी रिलेटिवली जो भी सीरीज दिया होगा उस सीरीज में उनकी रिलेटिवली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके लिए क्या किया जाता है, जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको एक इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, एक वेट प्रोवाइड किया जाता है. सो वेटेड इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड. जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसके क्या है, फॉलोइंग मेथड है. फर्स्ट वन इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. सो फर्स्ट वन इज वेटेड aggregative method. Next one is that is weighted average of the price relative method. Weighted average of price relative method. So we have to study two kind of method, that is weighted aggregative method and weighted average of the price relative method. So we have discussed one by one all these two, and we have also do some numerical question which is based on these method. Okay, so first of all we will discuss with the weighted aggregative method. Okay? So weighted aggregative method. So in this method वेट्स आर असाइन टू दी वेरियस आइटम. इस मेथड में क्या होता है कि जो वेट होता है डिफरेंट आइटम्स को प्रोवाइड किया जाता है. वेटेड एग्रीगेट ऑफ द प्राइस आर दी कैलकुलेटेड इंस्टेड ऑफ द सिंपल एग्रीगेट. ठीक है, वेटेड एवरेज और एग्रीगेट उनका फाइंड आउट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इंस्टेड ऑफ दी उनके जो सिंपल एग्रीगेट है उसकी जगह. जैसे सिंपल एग्रीगेट हम क्या कर रहे थे, P1 अपॉन P0 इंटू 100. यहाँ पे क्या है, उनके वेट जितना होगा, जिस आइटम को जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कैलकुलेशन किया जाएगा. सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ द असाइनिंग वेट टू द आइटम्स. ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको एक वेट प्रोवाइड करने का. सो वेट आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला on the basis of quantities of the base year, on the basis of quantities of base year, कि base year की कितनी क्वांटिटी है और क्या हो सकता है, on the basis of quantities of the current year, on the basis of quantities of current year, or next one is on the basis of the quantities of current year and the base year. ठीक है, on the basis of quantities of base year और current
ईयर, राइट। सो इन दिस हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंट मेथड हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी वेट प्रोवाइड करना है, वो वेट प्रोवाइड करने का क्या बेसिस हो सकता है, उसका बेसिस यही है कि या तो जो हम बेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में बेस ईयर दिया है, उसको जो हम वेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर की कितनी क्वांटिटी है, एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर एंड द करेंट ईयर, कि कितनी क्वांटिटी बेस ईयर की है, कितनी क्वांटिटी करेंट ईयर की है। उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको एक वेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ current year and the base year, which technique should be used to assign weight depends on the purpose of the construction of the index number, कि किस वाले को हमें कितना, किस वाले को मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को या क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को या क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और करंट ईयर को, किसको हमें ज़्यादा वेट प्रोवाइड करना है या किसको इम्पोर्टेंस देना है, वो किस पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि किस पर्पस के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर लेंगे या क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर लेंगे या क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड करेंट ईयर दोनों लेंगे। तो ये किस पे पूरा बेस्ड है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो we use the following methods to construct the index number by the weighted aggregative method, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में हमें सबसे पहला जो मेथड पढ़ना है वो है लेस्पियर्स मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड है और इस पे क्या होंगे, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। फर्स्ट वन इज लेस्पियर्स मेथड। So in the Lespier method, this method was introduced by the Mr. Lespier in 1871। इसको क्या है कि कौन इंट्रोड्यूस किया था, मिस्टर लेस्पियर ने यूज किया था इसको, कब, 1871 में, इन 1871, ओके। सो इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, वेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज इन द बेस ईयर। जो वेट होता है वो किस पे रिप्रेजेंट होता है, जो वेट होता है बेस्ड होता है किस पे, क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर, ठीक है। किसकी क्वांटिटी पे, बेस ईयर की क्वांटिटी पे ये क्या होता है, बेस्ड होता है। दैट इज, मैंने बताया था कि जब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज हम लोग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज ऑफ बेस ईयर लेंगे, तो मैंने बताया था अगर क्वांटिटी हम बेस ईयर की ले रहे हैं तो उसको हम Q0 लेते हैं और करंट ईयर की लेते हैं तो Q1। तो क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर क्या हो जाएगा आपका, Q0 हो जाएगा, राइट। फिर कह रहा है, सो लेस्पियर फॉर्मूला टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर इज, अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो क्या है, P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जो क्वांटिटीज है कमोडिटीज की बेस ईयर की, वो किस पे बेस्ड है, पूरा ये बेस ईयर पे ही बेस्ड है। तो बेस ईयर पे बेस्ड है तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, P01 इक्वल टू समेशन P1 मीन्स प्राइस ऑफ द करंट ईयर, Q0 इज द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इनटू 100। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, P01 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये P1 इज प्राइस ऑफ द करंट ईयर, Q0 इज द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, Q0 हियर डिनोट द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, P1 इज प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड P0 इज द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है दैट इज पार्शियल मेथड। सेकेंड वन इज
Pasche's method. This method was introduced by the Mr. Pache in 1874. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था मिस्टर पाशे? in 1874 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. आपका लेस्पियर मेथड 1871 में इंट्रोड्यूस हुआ था और पाशे मेथड 1874 में. In this method, weight are represented in the quantities of the commodities in the current year. ये किस पे बेस्ड होगा? Quantities of the commodities of current year. तो करंट ईयर का जब अगर हम कमोडिटीज लेंगे तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? Q1 से. सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1 इंटू राइट. क्या देखा हमने कि पाशे मेथड में क्या है कि इसको कौन दिया था? मिस्टर पाशे ने दिया था, जिसमें क्या था 1874 में उन्होंने दिया था. ये किस पे पूरा बेस्ड होता है? क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर. हम इसमें क्या करेंगे? जो भी क्वांटिटी करंट ईयर की है उसको लेंगे. तो देखिए यहाँ पे P1 क्या हो गया? प्राइस ऑफ द करंट ईयर. Q1 इज क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर. Summation P0 is price of the base year and the Q1 is quantities of the current year into 100. तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. लास्ट वन इज फिशर्स मेथड. फिशर्स मेथड. So next one is Fisher's method. So the method was introduced by the Professor Irving Fisher. इनको कौन इंट्रोड्यूस किया था? Professor Irving Fisher. Okay. So this method combines the techniques of the Lespier method and the Pache method. देखिए इसमें क्या होता है? It is the combination of Lespier method, Lespier's and Pache method. ये दोनों का जो अगर हम लोग फिशर्स मेथड पढ़ते हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. So in other words, in Fisher's method, weight are the represented by the quantities of the base year and the current year. So it is based on the quantities of commodities of current year, that is Q1, and quantities of the base year, that is Q0. So this method is considered as an ideal method. इसको एक ideal method बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है लेस्पियर और पाशे मेथड का. सो फॉर्मूला टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर इज गिवन एज. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? P01 इक्वल टू, देखिए आप इसका जो फॉर्मूला है इसको लिखेंगे समेशन P1 अपॉन Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 इंटू Q0 into this one, summation P1 Q1 upon summation P0 Q1, okay, into 100. right. अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग P01, इसको ये देखिए P1 Q0 और P0 Q0 किसका है? P1 Q. इसको लेस्पियर मेथड को दैट इज L इंटू इसको हम लोग क्या लेते हैं? दैट इज P. P मीन्स पाशे मेथड.
ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो सेम फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, L इंटू पी में हम लोग समेशन P1 Q0, ठीक है, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इंटू समेशन P1 अपॉन Q1 इंटू समेशन P0 Q1 इंटू 100, राइट। ये हो गया आपका, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेस्पियर एंड द पाश्चे मेथड। अब आपको क्या करना है, इसमें P01 हो गया आपका P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1, राइट, इंटू 100 क्या होगा, बाहर होगा क्योंकि 100 दोनों में कॉमन है। देखिए यही जो फॉर्मूला था, यहीं पे ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको स्प्लिटेड फॉर्म में इसलिए शो किया गया कि कहाँ से आया, तो अंडर रूट L इंटू पी, लेस्पियर इंटू पाश्चे। तो यहाँ पे P01 L का फार्मूला, लेस्पियर मेथड का फार्मूला क्या है, समेशन P1 अपॉन Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100, ये इंटू क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला दैट इज पाश्चे मेथड, समेशन P1 अपॉन Q1, समेशन P1 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1 इंटू 100। आपका ये आ गया, दोनों का 100 कॉमन था और 100 बाहर। तो इसके थ्रू हमने क्या देखा, 3 मेथड्स में फॉर्मूलाज को देखा है, ठीक है। उसमें क्या क्या देखा, ये क्या था आपका, एग्रीगेटिव मेथड था, सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव मेथड था, जिसमें हमने देखा लेस्पियर मेथड, पाश्चे मेथड एंड द फिशर्स मेथड। लेस्पियर मेथड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिस्टर लेस्पियर इन 1871, जिसमें वेट किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज ऑफ बेस ईयर के ही बस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका फॉर्मूला P01, देखिए Q0 मतलब बेस ईयर पे ही ये पूरा क्वांटिटी डिपेंडेंट है। सो P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला आपका लेस्पियर मेथड का। नेक्स्ट है पाश्चे मेथड का। सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिस्टर पाश्चे इन 1874 में। इस पे क्वांटिटीज जो वेट किसको प्रोवाइड किया रहा है, वेट को रिप्रेजेंट किसमें किया जा रहा है, क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज ऑफ द करंट ईयर। हम करंट ईयर पे जो भी क्वांटिटीज है उस पे ये बेस्ड है, दैट इज Q1। सो P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1 इंटू, ये हो गया आपका मेथड, पाश्चे मेथड का फॉर्मूला। थर्ड है आपका फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड में क्या है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेसर इरविंग फिशर and it is the combination of the Lespier method and the Paasche method, and the weightage are represented according to the quantities of the commodities of the base year and the current year. So base year is taken as the Q0 and the quantities of the current year taken as the Q1. So formula of the Fisher's method is this, that is P01 is equal to under root summation P1 upon Q0 divided by summation P0 into Q0 into summation P1 upon Q1 divided by the summation P0 into Q1 into 100। इसको अगर हम लोग स्प्लिटेड फॉर्म में देखते हैं कि फॉर्मूला आया कैसा, तो P01 इक्वल टू अंडर रूट L इंटू पी। L यहाँ पे क्या है, लेस्पियर मेथड को डेनोट L से किया है, P इज द पाश्चे मेथड, तो L जो है लेस्पियर मेथड उसका फॉर्मूला आपका ये रहा इंटू दिस वन, और 100 इसमें कॉमन है, तो अंडर रूट P1 अपॉन समेशन P1 अपॉन Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1 इंटू 100। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा कि डिफरेंट क्वेश्चंस होगा विच इज बेस्ड ऑन द लेस्पियर मेथड, पाश्चे मेथड एंड द फिशर्स मेथड। आपके पास प्राइस ऑफ द करेंट ईयर दिया होगा, प्राइस ऑफ द बेस ईयर दिया होगा, क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर P1 और Q0 कर रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका,
प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड द क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर, और फिर डिवाइडेड बाय P0 मीन्स प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर को करके जो भी वैल्यू आएगी पूरा हम लोग सम करेंगे इनटू 100 कर। तो अब क्या है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग इस पे बेस्ड करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियर्स मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है लेस्पियर मेथड से। तो क्वांटिटीज आपकी दी हुई है, कमोडिटी and then 1997 price and the quantity, 2008 price and the quantity। तो आपको पता है 1997 क्या है, बेस ईयर है। क्वांटिटीज इज A, B, C, D, 20, 50, 40, 20, 4, 3, 5, 10, 40, 60, 50, 40, 6, 5, 10, 20। तो ये आपका क्या हो गया, P0, दिस वन इज P1, Q0, Q0 एंड Q1। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है P1, Q0 एंड P0, Q0। हमें ये कैलकुलेट करके इनका सम करके डिवाइडेड किससे करना है, 100 से। ठीक है, P1 Q0 आपका क्या है, P1 देखिए ये, Q0 आपका ये, $25,400 समेशन P1 Q0 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर P0 Q0 समेशन P0 Q0। ठीक है, तो P1 Q0 आपका 160, 180, 250, 400, 80, 150, 200, 200, ये हो गया आपका 990 एंड इट विल बी 630। इसको सम कर लेते हैं, 400 हो गया, 160, 180, 123, 340 हो गया एंड 250, 437, 990 आ गया। इसको देखिए 400 ये और 150 प्लस 80, 630। ठीक है, राइट है हम लोग का। अब क्या करना है आगे, नेक्स्ट स्टेप, इस फॉर्मूला पे इसको पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है इंडेक्स नंबर लेस्पियर मेथड का, P01 इक्वल टू P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। हमें क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आई है P1 Q0 की, कितनी आई है, कितनी आई है इसकी वैल्यू, P1 समीशन P1 Q0 है आपका 990 डिवाइडेड बाई P0 कितना है, 630 इंटू 100। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, थ्री टू जा 6, 21, फिर ये कट होगा आपका 3, 7 जा 21। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, 1100 अपॉन 7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, दैट इज 157.14, 157.14, दैट इज P01। समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। हमने क्या किया, आपके पास सारी वैल्यूज दी होती है, आपको कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला अगर P0 Q0 तो आपको पता है P0, बट ये है कि
अगर जो बेस ईयर है उसका आपको 0 ही लेना है, P0 प्राइस, Q0 इज द क्वांटिटी। करंट ईयर का आपको क्या लेना है, P1 Q1। यहाँ पे हमने क्या किया, बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया। जो हमें कैलकुलेट करना है हम उसको वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे। जैसे हमें P1 Q0 करना था, P0 Q0 करना था, तो हमने किया वैल्यू देख लिया कहाँ पे है, कौन सा लेना है, P1 दैट इज दिस वन, Q0 इज ये किया, इसको सम किया क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, समीशन करने की। इसको सम करेंगे, इसको सम करेंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 157.14। तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली यही है आपका। जैसे अब इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगर बोल दे कि इसी क्वेश्चन में आपको पार्शियल मेथड भी कैलकुलेट करना है, तो अब आप क्या करोगे, पार्शियल मेथड को भी सिंपली जो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे लिखोगे, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर दोगे। फिर कह दे रहा है कि फिशर्स मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, तो बस आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वी विल गेट द आंसर ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो इट्स ऑल अबाउट today's class. In the next class we will also do some numerical questions related to the Less Pierce method, Paasche method, as well as the Fisher's